Good morning, students. So, from today onwards, we are going to start our online classes. So, take out your English literature book. I am going to start a new chapter. Okay, students. So, take out your book and take a pencil in your hand. Here are new chapter. Okay. We are going to start our new chapter. So put your finger on your book, The Wonderful World. Okay, we are going to start our new chapter. It is a poem about the world. We are going to start it related to our earth. ये पोएम बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर है। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जो हमारा वर्ल्ड है इसके बारे में इस पोएम में बताया गया है कि वो कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अपनी बुक्स निकालिए और इंग्लिश फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर ओपन करिए। So students, like this you will read. Okay? Put your finger. Okay? The Wonderful World. Like this you will also read along with me. So I am going to start. I am going to start a new chapter. It is a short poem and you will also listen carefully. Along with me, you will also recite the poem and put your finger on your book. The Wonderful World. I am going to read the poem. Great, wide, beautiful, wonderful world, with the wonderful water round you curled, and the wonderful grasses upon your breast, world you are beautifully dressed. The wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and whistles the meals, and talks to itself on the top of the hills. You are friendly, earth. How far do you go? With the wheat field that nod and the river that flow, with cities and gardens and cliffs and eels, and people upon you for thousands of miles. Ah, you are so great and I am so small. I trouble to think of you, world at all. And yet, when I said my prayers today, I whisper inside me seem to say, you are more than the earth, though you are such a dot. You can love and think, and the earth you can't. It is a very beautiful poem. So students, you are knowing about the world. You are knowing about the world, our beautifully world. So students, I am going to recite this poem in Hindi also. Recite means like a song. I am going to sing and you will also sing like this only. Okay? The Wonderful World. Great, wide, beautiful, wonderful world, with the wonderful water round you curled, and the wonderful grass upon your breast, world you are beautifully dressed.
The wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and whistles the meals, and talks to itself on the top of the hills. You friendly earth, how far do you go with the wheat field that nod and the river that flow, with cities and gardens and cliffs and eels, and people upon you for thousands of miles? Ah, you are so great and I am so small. I trouble to think of you, world at all. And yet, when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say, you are more than the earth, though you are such a dot. You can love and think, and the earth cannot. ये हमारे वर्ल्ड के बारे में ये पोएम है. वर्ल्ड मीन्स संसार, हमारी दुनिया के बारे में ये पोएम है. और इस पोएम में ये बताया गया है कि जो हमारा अर्थ है, वर्ल्ड है, वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना अद्भुत है. इसके चारों तरफ क्या है? वाटर है. और लैंड पे क्या है? ग्रास है. ये देखिए, लाइक दिस, ये ग्रास है. और रिवर्स भी हैं. हिल्स मीन्स माउंटेन्स, यहाँ माउंटेन्स भी हैं. और जो भी हमारे अर्थ पे कोई भी वीट मतलब अनाज या कुछ भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी होता है वो बहुत सारे लोगों में बंटता है. तो भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा जो अर्थ है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है. हम इसको इतना अच्छे से नहीं जानते, बट जितना भी जानते हैं ये बहुत ही सुंदर है. और हम इसको बहुत ही प्यार करते हैं. जहाँ आप रहते हो वो जगह आपके लिए बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही सुंदर है. वैसे ही हम इस दुनिया में, इस अर्थ पे रहते हैं. ये हमारी दुनिया, ये हमारा वर्ल्ड ही बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है. जैसे आप लोग घर में रहते हो तो आपका घर आपके लिए प्यारा है, अच्छा है. वैसे ही अर्थ पे हम लोग सब लोग रहते हैं तो हमारे लिए अर्थ भी उतना ही सुंदर है, अद्भुत है. और डिटेल में आज हम लोग जानेंगे. वन स्टैंजा I am going to read and explain in Hindi also. So listen carefully. The wonderful earth means जो हमारी दुनिया है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनुभवी है, जिससे हम लोग बहुत सारी चीज़ सीखते हैं कि हमारे अर्थ पे क्या क्या है. एक स्टैंजा में 4 लाइन्स होती हैं. ओके, स्टैंजा मीन्स दिस स्टैंजा. ओके, आई एम सेइंग वन स्टैंजा मीन्स दिस स्टैंजा. ओके, दिस स्टैंजा. देयर आर 4 लाइन्स. ओके, देयर आर 4 लाइन्स. सी, 1 2 3 4. So I am going to read one stanza. Okay, and I am explaining to you in Hindi. मैं हिंदी में भी आपको ये लाइन्स समझाती हूँ. सो आप लोग ध्यान से सुनिए और मेरे साथ साथ पढ़िए भी इसको. ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू क्रूएल. जो हमारा अर्थ है, वर्ल्ड है, वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बड़ा है और बहुत महान है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर्स हैं चारों ही तरफ. क्रूएल मीन्स जो स्फेरिकल शेप है, ये राउंड शेप है, उसके चारों तरफ क्या है?
पानी ही पानी है। ये ब्लू शेडेड पार्ट वाटर है। इसके साइड साइड में बहुत सारा पानी है, जिसकी वजह से ये बहुत ही सुंदर दिखता है। एंड द वंडरफुल ग्रासेस अपॉन योर ब्रेस्ट, वर्ल्ड यू आर ब्यूटिफुली ड्रेस्ड। जो वर्ल्ड है उसकी जो ब्रेस्ट है उसके ऊपर ग्रीन, ये देखिए ग्रीन कलर का एक ड्रेस है। ग्रास पे ग्रीन ग्रासेस होती है ना, वैसे ही ये ड्रेस है, कपड़ा पहना हुआ है ग्रीन कलर का। जो ग्रासेस हैं, लैंड है। वर्ल्ड यू आर ब्यूटिफुली ड्रेस, तुम बहुत ही सुंदर ड्रेस पहने हुए हो। द वंडरफुल एयर इज़ ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री। जो हवा है, हवा चलती है, बहती है, ठीक है, वो जो मेरे ऊपर से बहती है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, जिसकी वजह से जो पेड़ हैं वो हिलते डुलते हैं। जो हवा है वो पेड़ों को हिलाती है, जब उड़ती है या चलती है तो ऐसे वो हवा चलती है कि वो पेड़ भी हिलने लगते हैं। शेकिंग मीन्स हिलने लगते हैं। It walks on the water and whistles the meals and talks to itself on the top of the hills। जो वाटर है, ये पानी जो है, वो जब चलता है तो इतनी तेज़ से सीटी बजाता है। whistles मीन्स सीटी बजाता है दूर से ही। जब हमारी वो बहुत ही तेज़ से आवाज़ आती है सीटी बजाने की, खूब तेज़ से। पानी जब चलता है तो ऐसे सीटी बजाने की खूब दूर दूर से आवाज़ आती है। और जब बातें करते हुए, खूब तेज़ से बातें करते हुए, वो जो हील से मतलब माउंटेन से जब वो नीचे आती है तो खूब तेज़ से बातें करते हुए आती है। You friendly earth, how far do you go with the wheat field that nod and the river that flow? मेरी दोस्त अर्थ, तुम कितना दूर दूर तक जाओगी? और जो अनाज हैं, व्हीट मीन्स अनाज, जितने भी गेहूँ हैं, अनाज हैं, उनके फसल्स जो हैं उनको रिवर्स के फ्लो से, मतलब तुम कितना दूर दूर जाओगी पानी के साथ और उन अनाजों में पानी डालती हुई, देती हुई जाओगी। किसके द्वारा? रिवर के द्वारा। तुम दूर दूर जाती हो अपने पानी के साथ और फसल को पानी हुई देती हुई जाती हो। With cities and gardens and cliffs and eels and people upon you for thousands of miles। सिटीज़, शहर, खेत, गार्डन्स, पार्क्स, जितने भी जगह हैं तुम पानी हुई देती हुई जाती हो। जो पीपल हैं उनको भी पानी देती हो। तुम कितनी ही सुंदर हो, तुम कितनी ही अद्भुत हो। और जितने भी लोग हैं वो तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करते हैं। अगर तुम नहीं रहती तो ये दुनिया नहीं रहती। You are so great and I am so small। I trouble to think of you world at all। तुम बहुत महान हो, मैं तो तुम्हारे आगे बहुत ही
छोटा हूँ, कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे आगे। और मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ कि तुम बहुत अद्भुत हो। मैं तुम्हारे बारे में इतना कम सोचता हूँ, लेकिन तुम उससे भी ज़्यादा हो। And yet when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say, आज जब मैं प्रेयर कर रहा था या कर रही थी तो मैंने देखा और मेरे अंदर से आवाज़ आई कि तुम, क्या आवाज़ आई सुनिए आप लोग। यू आर मोर देन द अर्थ दो यू आर सच अ डॉट। तुम ये अर्थ से भी ज़्यादा हो, बहुत ही ज़्यादा हो। ये अर्थ से भी जितना मैं सोची थी कि तुम अर्थ इतना हो, बट उससे कहीं ज़्यादा हो, एक बिंदु के समान हो तुम। You can love and think and the earth cannot. मैं तुमको प्यार करती हूँ, सोचती हूँ, and the earth you can't. जो तुम अर्थ, मैं तुमको इतना प्यार करती हूँ, इतना सोचती हूँ, बट तुम इतना नहीं सोच सकते क्योंकि तुम इतने महान हो, इतने बड़े हो और तुम इतने अद्भुत हो कि सब लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। तुम सबके लिए इतना करते हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। आप लोग भी ऐसे ही पढ़ेंगे और सबको समझाएंगे और बताएंगे। Once more, I am going to recite the poem. Listen carefully. Put your finger on your book. The wonderful world. Great, wide, beautiful, wonderful world, with the wonderful water you cruel, and the wonderful grass upon your breast. World, you are beautifully dressed. The wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and whistles the meals, and talks to itself on the tops of the hills. You friendly earth, how far do you go with the wheat field that nod and the rivers flow? With cities and gardens and cliffs and eels and people upon you for thousands of miles. You are so great and I am so small. I trouble to think of you, world, at all. And yet, when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say, you are more than the earth, though you are such a dot. You can love and think, and the earth cannot. Okay, like this, you will read the poem. So, students, you will also write the word meaning in your copy also. Okay, and also write the poem, whole poem you will write and decorate. Okay, so thank you class for listening the poem, and you will also read the poem. Thank you students. जो हवा है वो पेड़ों को हिलाती है, जब उड़ती है या चलती है तो ऐसे वो हवा चलती है कि वो पेड़ भी हिलने लगते हैं। शेकिंग मीन्स हिलने लगते हैं। It walks on the water and whistles the meals
and talks to itself on the top of the hills. जो वाटर है, ये पानी जो है, वो जब चलता है तो इतनी तेज़ से सीटी बजाता है. विसिल्स मीन्स सीटी बजाता है दूर से ही. जब हमारी वो बहुत ही तेज़ से आवाज़ आती है सीटी बजाने की, खूब तेज़ से. पानी जब चलता है तो ऐसे सीटी बजाने की खूब दूर दूर से आवाज़ आती है. और जब बातें करते हुए, खूब तेज़ से बातें करते हुए, वो जो हिल से मतलब माउंटेन से जब वो नीचे आती है तो खूब तेज़ से बातें करते हुए आती है. You, friendly earth, how far do you go with the wheat field that nod and the river that flow? मेरी दोस्त अर्थ, तुम कितना दूर दूर तक जाओगी. और जो अनाज हैं, व्हीट मीन्स अनाज, जितने भी गेहूँ हैं, अनाज हैं, उनके फसल्स जो हैं उनको रिवर्स के फ्लो से, मतलब तुम कितना दूर दूर जाओगी पानी के साथ और उन अनाजों में पानी डालती हुई, देती हुई जाओगी. किसके द्वारा? रिवर के द्वारा. तुम दूर दूर जाती हो अपने पानी के साथ और फसल को पानी हुई देती हुई जाती हो. With cities and gardens and cliffs and hills and people upon you for thousands of miles. Cities, शहर, खेत, गार्डन्स, पार्क्स, जितने भी जगह हैं तुम पानी हुई देती हुई जाती हो. जो पीपल हैं उनको भी पानी देती हो. तुम कितनी ही सुंदर हो, तुम कितनी ही अद्भुत हो. और जितने भी लोग हैं वो तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करते हैं. अगर तुम नहीं रहती तो ये दुनिया नहीं रहती. You are so great and I am so small. I trouble to think of you world at all. तुम बहुत महान हो, मैं तो तुम्हारे आगे बहुत ही छोटा हूँ, कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे आगे. और मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ कि तुम बहुत अद्भुत हो. मैं तुम्हारे बारे में इतना कम सोचता हूँ, लेकिन तुम उससे भी ज़्यादा हो. And yet when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say. आज जब मैं प्रेयर कर रहा था या कर रही थी तो मैंने देखा और मेरे अंदर से आवाज़ आई कि तुम, क्या आवाज़ आई सुनिए आप लोग. You are more than the earth, though you are such a dot. तुम ये अर्थ से भी ज़्यादा हो, बहुत ही ज़्यादा हो. ये अर्थ से भी जितना मैं सोची थी कि तुम अर्थ इतना हो, बट उससे कहीं ज़्यादा हो, एक बिंदु के समान हो तुम. You can love and think and the earth cannot. मैं तुमको प्यार करती हूँ, सोचती हूँ, and the earth you can't. जो तुम अर्थ मैं
तुमको इतना प्यार करती, इतना सोचती हो, बट तुम इतना नहीं सोच सकते क्योंकि तुम इतने महान हो, इतने बड़े हो और तुम इतने अद्भुत हो कि सब लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम सबके लिए इतना करते हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। आप लोग भी ऐसे ही पढ़ेंगे और सबको समझाएंगे और बताएंगे। वंस मोर आई एम गोइंग टू रिसाइट द पोएम। लिसन केयरफुली, पुट योर फिंगर on your book. The wonderful world. Great, wide, beautiful, wonderful world, with the wonderful water you cruel, and the wonderful grass upon your breast. World, you are beautifully dressed. The wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and whistles the meals, and talks to itself on the tops of the hills. You friendly earth, how far do you go with the wheat field that nod and the rivers flow with cities and gardens and cliffs and eels and people upon you for thousands of miles. You are so great and I am so small. I trouble to think of you, world, at all. And yet, when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say, you are more than the earth, though you are such a dot. You can love and think, and the earth cannot. Okay, like this you will read the poem. So students, you will also write the word meaning in your copy also. Okay, and also write the poem, whole poem you will write and decorate. Okay, so thank you class for listening the poem, and you will also read the poem. Thank you students.